سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من طريقات تشريف علماء ذوي الاحترام ارباب علم و دانش ترجمانان مسلکی اعلیٰ حضرت عوام اہل سنت دور دراز بیٹھ کر سننے والی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز پڑھائیے اور مجھے سمجھ. آپ ادھر دیکھیے، مجھے جو ذمہ داری آپ کی ہے اس کو نبھائیے. الحمد للہ الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بأنواع التشريف، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب الدين الحنيف، وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته، خصوصا على سيدنا ومولانا عبد القادر الجيلي الذي كان دومة بأنوار اللطيف. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. قادری املا رہے آغاز اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. قادری کر قادری رکھ. بلند آواز سے آمین. قادریوں کے مجمع سے آمین کی آواز نہیں آئے گی تو کس کی کون سے مجمع سے؟ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. اس کا بیس کھلا ہے کیا؟ بیس بند کی بیس. حضرات گرامی اوقات،
میرے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت جشن غوث الورا اور امام احمد رضا کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جن احباب نے اس جلسہ پاک کا انعقاد کیا مجھے بتایا کہ یہ اس بار 10ویں کانفرنس ہے۔ رب قدیر ان حضرات کی مساعی جمیلہ کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو اس کی تگودو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمیں افکار امام احمد رضا خان، نظریات امام احمد رضا خان، تعلیمات امام احمد رضا خان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس سے بیشتر آپ نے کئی ساری تقاریر بھی سماعت کی ہوگی، اور میرے بعد انشاءاللہ الرحمن مرکز اہل سنت بریلی شریف کے صاحب سجادہ گرامی مرتبت حضرت والا حضرت علامہ مولانا احسن رضا خان صاحب قبلہ بریلی شریف، ان کا بھی دیدار کرنا ہے، اور ان کے دستے پاک پر ان حضرات کو بیعت بھی ہونا ہے جو حضرات اب تک کسی جامعہ شرائط پیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ ممبر پر بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہے، مگر چہروں کا جھکا ہونا اس بات کو بتا رہا ہے کہ وہ میری طرف متوجہ نہیں، حضرت موبائل ان کو اپنی جانب مائل کیے ہوئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر میری گفتگو کو اس نظر سے سن لیا جائے کہ کبھی چھوٹوں کی بات اس غرض سے بھی سنی جاتی ہے کہ کوئی بات اچھی ہو سکتی ہے بول دیں، اور اس لیے بھی سنی جاتی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اصلاح کرنا۔ رب قدیر ان علماء ذوی احترام کا سایہ غرباء اہل سنت پر دراز فرمائے، اور دہلی کی سرزمین پر سنیت کا چمن یوں ہی سبز و شاداب رہے، اور اس میں جو پھول کھلتے رہے اس کی خوشبو سے اہل سنت کی مشام جاں معطر ہوتی رہے۔ اب عرض و معروف سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے۔ سارا مجمع پڑے اس خیال کے ساتھ کہ میرے نبی اپنی بارگاہ میں، اپنی قبر شریف میں، اپنے مبارک مدینے میں ہم غلاموں کی آواز کو سن رہے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ سب پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب، میں بار بار تو آپ سے نہیں کہوں گا، اس مائک کی سیٹنگ اپنی عمر کے حساب سے مت کیجیے، میری عمر کے حساب سے کر دیجیے، تاکہ دونوں کا ہم عمر ہونا یہ یکساں ہو رہے اور ساتھ ہی دونوں کا توازن برقرار رہے۔ سمجھ گئے نا؟ اب دوبارہ مجھے کہنا نہ پڑے، ایک بار کہہ دیجیے، کیونکہ روز کا مسئلہ ہے، ایک دن اگر آواز متاثر ہو جائے گی تو پھر کئی دن تک پریشان ہونا پڑے گا، اس لیے کرم فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم سب اہل سنت والجماعت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت اسلام عطا فرمائی اور ہمیں سنی سے العقیدہ بنایا۔ اور اتنا یاد رکھیے گا، امام احمد رضا کانفرنس میں آپ شرکت کر رہے ہیں، میں اسی حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اہل سنت والجماعت ہی دنیا میں کامیاب و کامران اور حق پرست جماعت ہے۔ میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، اپنے مذہب و مسلک کی تائید میں بلند آواز سے سبحان اللہ تو بولیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور الحمدللہ بھی بولیے، تاکہ اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے، اس کی حمد بھی ہو جائے، ہے نا؟ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہی حق، الحمدللہ، اس کے علاوہ کوئی جماعت حق پر نہیں ہے۔
الملل والنحل کے اندر ایک روایت ذکر کی گئی، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرے نبی سے پوچھا گیا سرکار من الناجیہ، یہ کامیاب ہونے والی جماعت کون سی ہے؟ اللہ اکبر، علامہ سید انتظار علی صاحب قبلہ زندہ باد، علماء اہل سنت۔ زندہ باد۔ سادات اکرام بھی تشریف لا رہے ہیں، علماء اکرام بھی تشریف لا چکے ہیں، کچھ لا رہے ہیں۔ بلند آواز سے ذرا بول دیجیے سبحان اللہ تاکہ ماحول اول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے اس جماعت کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو خوشی میں بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور فرمائیے گا، میں عرض کر رہا تھا جماعت اہل سنت کی حق ہے۔ بے شک۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور آپ نے فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گے، ان میں ایک فرقہ جنتی ہوگا، من الناجیہ، حضور یہ بتائیں کامیاب ہونے والی جماعت کون سی ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا، یہ مت کہیے گا پرانا میٹر ہے، اسلام ہی 1400 سال پرانا ہے تو نیا کہاں سے لاؤ؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب پوچھا گیا من الناجیہ کامیاب ہونے والی جماعت کون سی ہے، میرے سرکار نے فرمایا اہل السنت والجماعہ۔ سبحان اللہ۔ اہل ممبر کی ذرا صدا بلند ہو جائے یار، تھوڑا سا تو کم سے کم بیداری آپ کریں، اس لیے کہ مقتدیٰ کو دیکھ کے مقتدی فیصلے کیا کرتا ہے، کیا بات ہے۔ اور جب مقتدیٰ بولتا ہے تو مقتدی سمجھتا ہے یہاں بولنا ہی چاہیے، اس لیے کہ ہم سب رہنما ہیں اور یہ سب پیچھے چلنے والے مقتدی ہیں۔ جی جی بے شک۔ قاری صاحب قبلہ اس وقت سب سے بڑے مقتدیٰ آپ ہیں، اس لیے کہ اس قوم نے سارا ممبر آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ جس کو چاہیں بٹھائیں، جس کو چاہیں کھڑا کریں، اور جس کو چاہیں بلوائیں، جس کو چاہیں خاموش کریں۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار نے ارشاد فرمایا اہل السنت والجماعہ۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، چوتھا پارہ ہے، رب قدیم نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ یاد کرو اس دن کو جس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ یہاں رک کر ایک جملہ عرض کرتا ہوں، کل سے بہت سارے افراد مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، حضرت آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، آپ نے ایسا کیا ویسا کیا۔ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، بس اتنا یاد رکھیے گا سنیت حق ہے، حق نے ہی سب کچھ کر دیا ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ شہزاد کے سر پر سیڑھا نہیں۔ اہل سنت کا اگر چھوٹا سا بچہ بھی جائے اور باطل کے مقابل جائے گا، تائید الہی، تائید غیبی حاصل ہوگی، اس لیے کہ آج تک حق کبھی تباہی نہیں ہے، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے علماء کہتے ہیں الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ غالب ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا یہ میرا کچھ کمال نہیں، میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ جو بھی عالم دین بڑھے گا، اعلیٰ حضرت نے اتنے حوالے دے دیے ہیں، اتنی کتابیں دے دی ہیں، اور اپنے فتاوہ میں اتنی حدیثیں جمع کی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، فتاوہ میں اتنی حدیثیں جمع کی کہ جس پہ کرے فخر روح بخاری، بریلی بنا سنیوں کا بخارا، بریلی میں احمد رضا جب سے آئے، الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام کی پر اترنے والی قرآن کہتا ہے، مقدس کتاب کہتی ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ یاد کرو ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ اب آئیے عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کون عبداللہ ابن عباس؟ جو 8-9 سال کی عمر میں اتنے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ آج بالعقیدہ قوم کہتی ہے نبی علیہ السلام کے پاس ہے کیا؟ ہم نے کہا تو نبی کے اختیار کی بات کرتا ہے، ارے نبی کی زبان سے جملہ نکل جائے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا۔ ایک دن عبداللہ ابن عباس نے حضور کے وضو کے لیے پانی کا دے دیا، سرکار نے کرم فرمایا، دعا کی اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام سرکار کے صحابی عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے، قرآن کی آیت لے کر آتے، ابھی عمر 8-9 سال کی ہے مگر قرآن کی تفسیر کرتے۔ ہم نے کہا ہمارا بچہ 8-9 سال میں قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا نہیں جانتا ہے، لیکن دعائے مصطفیٰ کا کمال دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 8-9 سال
की उम्र में कुरान की तफसीर कर रहे हैं। मेरे इमाम कहने लगे इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, खलीफ़े हुज़ूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। यही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं तबयद्दु वजूहु अहले सुन्नति वल जमाअत। अहले इल्म समझ गए इसलिए बोल रहे हैं तो आप भी बोलो, अच्छा ही मैंने कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वतस्वद्दु वजूहु अहले बिदअति व दलाला। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं क़यामत के दिन जिस जमात का चेहरा चमकता होगा वह सुन्नियों की जमात। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब या तो मैंने फारसी में बोला आपके समझ में नहीं आया, या उर्दू में बोला है तो आप तजाहुल आरफाना यानी जानकर अनजान बनना है, और अगर आप अनजान नहीं बनना है तो जरा इस जुमले पर बोलिए। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं क़यामत के दिन जिस जमात का चेहरा चमकता होगा वह सुन्नियों की जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वतस्वद्दु वजूहु अहलिल बिदअति व दलाला। और फरमाया क़यामत के दिन जिस जमात का चेहरा काला होगा वो बिदअतियों की जमात है। हमने कहा ये है क्यों, वजह क्या है, सुन्नियों का चेहरा चमक क्यों रहा है, बदअकीदा का चेहरा काला क्यों पड़ रहा है? वजह ये है कि उनके दिल में मोहब्बत रसूल है। हमने कहा सुन्नियत की हक्कानियत के लिए सबसे बड़ी दलील अगर आपको चाहिए तो समझ लीजिएगा, आप दुनिया के सारे फिरकाए बातिला का मुताला करें, सारे फिरकों के बारे में पढ़ें, उनका जायजा लें, उनके बारे में एक्सपीरियंस और तजर्बात हासिल करें, आपको पता चलेगा जो खूबी अल्लाह ने अहले सुन्नत को अता फरमाई है और किसी जमात में नहीं है। आप कहेंगे मौलाना खूबी क्या है, मैं कहूंगा एक तो इस जमात में मोहब्बत पाई जाती है, मोहब्बत सहाबा भी पाई जाती है, मोहब्बत अहले बैत भी पाई जाती है, और सबसे बड़ा कमाल यह है इस जमात के अंदर ताजीम पाई जाती है। हम सरकार की ताजीम तो करते ही है, सहाबा की ताजीम तो करते ही है, अहले बैत की ताजीम तो करते ही है। अगर सरकार के खानदान से निस्बत रखने वाला अगर कोई सैयद ज़ादा भी आता है हम उसकी ताज़ीम करते हैं, और आला हजरत की ज़बान में कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। आप देख लीजिए उसी ताज़ीम का कमाल है। ये जलसा है, इस जलसे में कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पैर फैला करके बैठा हो, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो सुस्ती का मुजाहरा कर रहा हो, कोई पैर फैला कर। लेकिन बड़े बड़े इज्तिमाअत देख लीजिए 12 बजे तक खत्म जरूर हो जाते हैं, मगर बड़े बड़े बड़ी बड़ी डिशें होती है, खाना खाते हैं, उनका मौलवी खड़े होकर के तकरीर कर रहा है, सामने बैठकर लोग पैर फैलाए हैं। हमने कहा ये उसी बेअदबी का नतीजा है जो सरकार की बारगाह में की थी, उनके पेशवाओं ने की थी। हमने कहा तुम्हें गुस्ताखी करने वाला मौलवी मुबारक हो, हमें अदब बचाने वाला इमाम अहमद रज़ा खान मुबारक हो। इसका आलम ये है जिसने बद मज़हबों के किले उठा दिए, हिम्मती आला हज़रत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, जवाब नहीं। नारा मुख्तसर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा नारा है मेरे भाई, बैठ जाए। नारा लगाते रहे लेकिन मुख्तसर नारा, ताकि तकरीर ज्यादा से ज्यादा सुन सके। नारा लगाइए मैं थोड़ा मुख्तसर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने कहे के खिलाफ कर रहा हूँ, प्रोफेसर साहब थोड़ी इसकी आवाज़ जो है ना फ्री कर दीजिए, इसको थोड़ा सा फ्री कर दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। असल में 8-9 साल तो हो ही गए मुझे इस लाइन में। कारी यूसुफ साहब तो बहुत पुराने हैं, जब मैं पढ़ता था तब ये लमसुरी करते थे। अब ये कितने उम्र दराज होंगे वो आपको अंदाजा लगेगा। ये हमारे बुजुर्गों में आते हैं स्टेज की दुनिया में, लेकिन 8-9 साल में मुझे भी तजुर्बा हो गया है। माइक में खुतबा पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि माइक कितने पानी में है या कितनी आवाज में है। अच्छा है आपका माइक, बस अब यही छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। मैंने अर्ज किया ना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों अहले सुन्नत के पास अदब भी है और ताज़ीम भी है। यही तालीमात जो सरकार अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई, इन तालीमात को आम किया सहाबा इकराम ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, अइम्मा मुज्तहिदीन ने।
यही पाकीज़ा तालीमात को आम करते करते आगे बढ़ाते बढ़ाते अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम की जमात में, अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम की उम्मत में मुजद्दिदीन की जमात पैदा फरमाई। कभी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आ रहे हैं, कभी अबू बकर बाक़िलानी तशरीफ ला रहे हैं, कभी इमाम शाफ़ई तशरीफ लाते हैं, कभी और बुजुर्गाने दीन तशरीफ लाते हैं, कभी हजरत अब्दुल कादिर बदायूनी तशरीफ लाते हैं, कभी इमाम अहमद रजा खान तशरीफ लाते हैं। और सुनिएगा मुजद्दिद कौन होता है? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला यबअसु लिहादिहिल उम्मती अला रासी कुल्ली मियति सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह हर 100 साल के अंदर, यानी एक सदी में, अल्लाह ताला हर सदी के अंदर एक ऐसी जात को भेज दिया करता है जो जात इस उम्मत के लिए उसके दीन की तस्दीक किया करती है। ये हदीस मशहूर है, मगर एक नुक्ता बता रहा हूँ, सारे अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। दाएं बाएं आपका ज़हन व दिमाग ना जाए, ये आपकी मोहब्बतें होगी। और आप हजरात ध्यान से सुनिएगा, आज बड़े मुंह बजाए जाते हैं, आला हजरत को बरेली का, खाली बरेली का मौलवी बना करके कुछ लोगों ने रख दिया। हम नहीं मानते, मसलक का नाम ले लिया जाए, बड़ी तकलीफ होती है। हमने कहा एहसान इलाही ज़हीर ने अपनी किताब अल बरेलवियत में जो बकवास की थी, जो इतराज़ात किए थे, ये 5वां मसलक कहाँ से आ गया? खुद को सुन्नी कहने वाला भी यही कह रहा है। हमने कहा हाल अपना पता कर, याद रख इमाम अहमद रजा खान को खानकाए रज़वियत में समेटने वालों और उनको लिमिटेड बनाने वालों, तुमने हदीस पर गौर ही नहीं किया। सरकार फरमाते हैं लिहाज़िही उम्मा, अल्लाह हर 100 साल के अंदर इस उम्मत के लिए भेजता है। उम्मत में कादरी भी है, उम्मत में चिश्ती भी है, उम्मत में सोहरवर्दी भी है, उम्मत में नक्शबंदी भी है। कादरी के अंदर जितनी शाखें निकलती है, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो उसी तरीके से कादरी हो, और भी जितने सलासिल पाए जाते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इमाम अहमद रजा खान की जरूरत रही। हम कहते हैं जरूरत है, इसलिए कि सरकार ने फरमाया अल्लाह हर 100 साल के अंदर इस उम्मत के लिए भेजता है, और उम्मत में सारे पाए जाते हैं। इसलिए इमाम अहमद रजा खान किसी खानका में लिमिटेड नहीं है, उसमें महदूद नहीं है। जहां जहां सुन्नी पाए जाते हैं, आला हजरत सबके मुजद्दिद है। इसीलिए तो आला हजरत की वो मकबूलियत पाई गई, वो तालीमात आम हुई जब आला हजरत ने काम किया ना। और जितने अहले इल्म बैठे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली की सरजमीन में जानता हूँ बड़े हालात दिगर को है, लेकिन अल्लाह का फजल है, अब सुन्नियत में बाहर आई है। अहले सुन्नत का कमाल यहाँ पाया जा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये डगर डगर नगर नगर फिरने वाले एक दिन सिमट जाएंगे, इसलिए कि कुल जाल हक हो व सहकल बातिल इल्लल बातिला काना ज़हूका। घबराने की जरूरत नहीं। उस इमाम अहमद रजा खान की जिंदगी को पढ़ो, जिनके सामने हासिदीन भी थे। कभी मसले अदारे सानी पर उनके खिलाफ मुकदमा कराया जा रहा है, कभी आप पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पर फिर कहाए बातिला तरह तरह से इतराज कर रहे हैं। जब ये सारी चीजें पाई गई, तब मेरे इमाम ने कहा एक तरफ आदाए थी, एक तरफ है हासिदी, बन रहे तरह शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब ये कमाल मिल गया, बारगाह मुस्तफा से उनको इमदाद मिली, मदद मिली, तो कहने लगे क्यों कहूँ बेबस हूं मैं, क्यों कहूँ बेबस हूं मैं, तुम हमें तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और कहा था ना काम को ले लीजिए, तुमको जो राजी करे। आला हजरत ने किया, कहा फौरन नबी की बारगाह में दुआ कबूल हुई, किताबें लिखते चले गए, और ये सारी किताबों ने अकायदे अहले सुन्नत की हिफाजत की। फिर कहाए बातिला से बचाया, फकीरों को इस्लाम के करीब किया। फिर ज़माने ने देखा, जहां जाओ वहां आला हजरत, जहां जाओ वहां आला हजरत, जहां जाओ वहां आला हजरत। तब सुन्नियों ने एक नारा लगाया, वादी रज़ा की, कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रज़ा का है। आला हजरत आला और आला हजरत ने किया क्या? आला हजरत ने किया क्या? जो किया था उस कियो को देखकर मेरे मुर्शिद ने कहा, क्या बात है, वाह। जहां में आम पैगामे शहीद अहमद रजा कर दे, क्या बात है। पलट के पीछे देखिए, फिर से तजदीद वफा कर। सुभान ये अल्लाह। आखिर तजदीद वफा है क्या? क्या बात, वाह वाह। मैं इस तजदीद वफा ही को समझा दूं। और 40 मिनट रह गए, 12:30 बजे तक का मुझे कहा था कि जलसा खत्म हो जाएगा।
बड़ी अच्छी बात है, मेरे लिए भी बेहतर है कि मैं जल्दी निकल जाऊंगा, सुबह मदरसा भी आसानी से हो जाएगा। क्या बात। आज हम आ रहे थे तो हमारे प्रिंसिपल साहब कहने लगे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दिल्ली। बोले फिर कहाँ? मैंने कहा दिल्ली ही में प्रोग्राम। तो बोले सुबह क्लास। मैंने कहा जब 450-500 किलोमीटर दूर से आकर अल्हम्दुलिल्लाह सफर करके प्रोग्राम करके क्लास कर लेता हूँ तो दिल्ली तो बहुत करीब है। क्या बात है, तो वाह। किसी ने कहा था हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली तो लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि हुनूस दिल्ली करीबस्त। अब वो थोड़ा सा मुहावरा बदल गया, दुनिया तरक्की कर गई। गौर फरमाइए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दीवानों, सरकार की एक पाकीज़ा हदीस है, यहमिलु हाज़ल इल्मा मिन कुल्लि खलफिन अदूरुहु यनफून तहरीफ अल-गालिन व इंतिहार अल-मुब्तिलीन व तावील अल-जाहिलीन। अभी मैंने एक हदीस पढ़ी थी, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह ताला हर 100 साल में एक ऐसी जात को भेजता है इस उम्मत के लिए जो उम्मत के दीन की तजदीद करती है। तजदीद का इंग्लिश में माना होगा अपडेट करना, नयापन करना। अब आप कहेंगे मौलाना इस्लाम तो 1400 साल पुराना है, उससे भी ज्यादा साल हो गए, 1400 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं मुजद्दिद नया करने आता है। मैंने कहा नया करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि जो अकीदा 1400 साल पुराना हो उस अकीदे को बदल दिया जाए, इसलिए कि ये नया करना सुन्नियों का मुकद्दर नहीं है, ये तो किसी और का मुकद्दर है। हमारे यहाँ तो चेहरा हटाया जाता है या नकाब हटाया जाता है, चेहरा दिखाया जाता है, जो गंद आ चुकी है उसको साफ कर दिया जाता है, जो नजरियात के अंदर खराबी पैदा कर दी गई उस नजरिए को साफ किया जाता है। जरा गौर फरमाइएगा, इसका जवाब दूसरी हदीस में मिलेगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहमिलु हाज़ल इल्मा, इस इल्मे दीन को लेते हैं, किससे लेते हैं? अच्छे असलाफ से लेते हैं। कौन लेते हैं? बावकार, उम्दा, अच्छे सलीके वाले, उम्दा तबीयत रखने वाले जानशी लेते हैं। अब वो करते क्या है? यानी मिसाल के तौर पर विरासत में एक आदमी को अपने बाप से क्या मिला? कोई कारोबार मिल गया, उसने कारोबार को अच्छा चला दिया। लोग कहते हैं यार अपने बाप का ये कपूत नहीं सपूत निकला है, ये दुनियावी मामला है, ये दुनियावी विरासत है। लेकिन आओ हम बताते हैं आपको, ये दुनियावी विरासत नहीं, ये इल्मी विरासत है, ये उखरवी विरासत है, ये रूहानी विरासत है, ये दीनी विरासत है। सरकार फरमाते हैं हाँ सारे असलाफ से उनके अच्छे जानशी उनसे इल्मे दीन लेते हैं, और इल्मे दीन लेकर करते क्या है? यनफून तहरीफ अल-गालिन, गुलू करने वालों ने इस्लाम में जो तब्दीली कर दी है उस तब्दीली को खत्म करके असले इस्लाम समझा दिया करते हैं, सही दीन समझा दिया करते हैं। वह तावील अल-जाहिलीन व इंतिहार अल-मुब्तिलीन, और बातिल परस्तों ने जो झूठ बोला है उस झूठ से पर्दा हटा देते हैं। वह तावील अल-जाहिलीन, और जाहिलों ने जो तावील की है उस तावील को खत्म कर दिया जाता है। आइए इसी तनाजुर में आगे बढ़ता हूँ। इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी को देखो, आला हजरत के दौर में झूठी तावीलें भी की जा रही थी, झूठ भी बोला जा रहा था, और इसी तरीके से गुलू करने वाले इस्लाम के कवानीन में तब्दीली भी पैदा कर रहे थे, चेंजिंग लेकर के आए थे। आपको नहीं मालूम आला हजरत के दौर में एक शख्स ने एक फतवा दिया और यह कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई आखिरी नबी आ जाए, कोई दूसरा नबी आ जाए माअज़ल्लाह, तो कहा नबी के आखिरी होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी किताब लिख दी तहज़ीरुन नास के नाम से। तब इमाम अहमद रजा खान ने समझ लिया ये इस्लामी अकीदे के खिलाफ है, इसलिए कि कुरान कहता है मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, हमारे नबी आखिरी नबी है। ऊंचा बोलो यार, हमारे नबी आखिरी नबी है। सरकार ने खुद फरमाया ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अब आला हजरत का कलम चल रहा है, मौलाना साहब कलम भी कौन सा बता दूं? हजरत हसन को याद कीजिए, जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान में कुफार कुरैश ने तौहीद की, हिजो के अशार लिखे, कसीदाए हिजाइया लिखा, मेरे नबी ने एक दिन इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबा, माल से मेरी मदद करते हो, तीरों तलवार से मेरी मदद करते हो, ज़बान से मदद कौन करेगा? हजरत हसन कहने लगे आका मैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी ने अरबी में अशार लिखे और लिखकर क्या फरमा रहे हैं? फइन्ना अभी ववालिदी व इनसी लहर मोहम्मद मिलको बिका, कहने लगे कुफार कुरैश होश के खोल लो, मैं, मेरा दादा, मेरी इज्जत
इज्जत सब सरकार की इज्जत के लिए ढाल है। हम पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि सरकार की इज्जत पर पहरा दे। सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, जबान हिलाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत हसन कह रहे हैं फइन्ना अबी व वालिदी व इरसी लिअंस मुहम्मद मिनको बिका, फरमाया मेरा बाप, मेरे दादा, मेरी इज्जत सब सरकार की इज्जत के लिए ढाल है। और आगे कहा सुनो लिसानी सारिमुन ला ऐब फीही व बहरी ला तुकद्दिरहु तला। कहा क्या समझते हो, हसन की जबान नहीं है, काटने वाली तेज तलवार है। कहा तुम्हारे अशार की मिसाल ऐसी है ढोल, मेरे अशार की मिसाल समंदर। आप दिन भर समंदर में ढोल डालते रहो, पानी कम होने वाला नहीं है। दिन भर डालते रहो, पानी गंदा होने वाला नहीं है। हजरत हसन ने पहला जुमला क्या बोला, लिसानी सारिमुन ला ऐब फीही, मेरी जबान काटने वाली तेज तलवार जबान है, तेज तलवार है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने वो हजरत हसन है, ये हसनुल हिंद है। इस शेर पर नजर पड़ी तो कहने लगे किल के रजा है, खंजरे को खार कर सुबह आगे से कह दो खैर बनाए नशे करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मरहबा मरहबा, ताजदारे खत्म नबूवत, मरहबा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सलामत रखे। अगले जितने नारे लगाने वाले हैं अल्लाह उसका भी अजर और सवाब अता फरमाए। आमीन। बगैर लगा ही सवाब से दे। नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमली। सुभान अल्लाह, आमीन बेश। इंशाअल्लाह ठीक है, मुख्तसर वक्त है, असल में फिर वो परमिशन खत्म हो जाएगी तो फिर गुफ्तगू भी खत्म हो जाएगी, वरना नारों से तो हमें प्यार है ना। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। बेशक समझ गए, बेशक। सुस्ती तो नहीं आई। नहीं नहीं नहीं। शायर कहता है ना, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। क्या सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बात चल रही थी यनफून तहरीफल गाली। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक किताब नहीं कई सारी किताबें लिखी इस अकीदे पर। आपने अल-मुबीन खत्मन नबीयीन भी लिखी, मेरे इमाम ने जज़ाउल्लाह अदुव्वा बेबाई खत्मन नबुव्वा भी लिखी। और आला हज़रत ने इसमें कुरान की आयत, अहदीस, अक़वाले उम्मत, अक़वाले बुजुर्गा से पूरा इस्तिदलाल किया, दलील दी और सामने वाले को बिल्कुल लाजवाब कर दिया। इसीलिए तो कहा गया ना फबुहितल लज़ी कफ़र, काफिर हक्का बक्का रह गया। अब आइए उन्हीं में से एक दो हदीस आपको बता रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी है, नाम हज़रत अबू हुरैरा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस जुमले पर जरा गौर करना, इस हदीस का लुत्फ लीजिएगा, इसकी लज्जत महसूस कीजिएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसको अबू नुआइम ने अपनी किताब हिलियतुल औलिया में तहरीर फरमाया है और आला हज़रत ने उसी के हवाले से जज़ाउल्लाह अदुव्वा बेबाई खत्मन नबुव्वा में जिक्र किया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया नज़ला आदम मिन हिंदी इस्तवहशा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मेरे और आपके बाप हज़रत अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। अब एक जुमला मैं आपको दे रहा हूँ, ज़ाय मत कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं आदम को जन्नत से उतार दिया गया इसलिए कि उनसे गुनाह हो गया था, माअज़ल्लाह उनसे खता हो गई थी। हमने कहा खता तेरी फिक्र में है, खता तेरी ज़बान में है, खता तेरे अंदाज में है। मेरे बाप हज़रत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम से कोई खता नहीं, इसलिए कि वो नबी है और नबी मासूम अनिल खता होता है। हम खता इस्तिहादी का कौल करते हैं, लेकिन खता बेमाना गुनाह नहीं लेते, मासियत और सय्या के माना में नहीं लेते। कहने लगा उनको आसमान से, उनको जन्नत से नीचे उतारा गया। कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दीवानों, मौलाना इरशाद रामपुरी के शागिर्दे रशीद जिन्होंने तफसीरे जलालैन के हाशिये पर हाशिया लिखा, जलालैन पर हाशिया लिखा और जबरदस्त बात इरशाद फरमाई। हजरत आदम जमीन पर आए क्यों थे? इसलिए
उनकी पुष्प में काफिर भी मौजूद थे, वफादार भी थे, गद्दार भी थे। उन्होंने कहा आदम गुनाह की बुनियाद पर नीचे नहीं आए हैं, बल्कि तुम जैसे गद्दार भी उनकी पीठ में सवार होकर जन्नत में पाए जाते थे, इसलिए जमीन पर तुम्हें छोड़ने आए हैं और हम जैसे वफादारों को जन्नत में ले जाने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। बहुत लाजवाब। और फरमाइए, हजरत आदम तशरीफ लाए जमीन पर, वहां वो भी कहा हिंदुस्तान में। अब एक आदमी मुझसे कहने लगा, मौलाना श्रीलंका में सरनदीप पहाड़ पर हजरत आदम उतरे, सरनदीप पहाड़ श्रीलंका कभी इंडिया का हिस्सा था ही नहीं। मोहतरम आपकी तवज्जो चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे मौलाना शहजाद साहब किबला कहते हैं तो किबला मानने क्या जाता है, काबे की तरफ मुंह कर लेना, गुफ्तगू में किबले की तरफ मुंह कर लीजिए, है ना। सर हिलाएंगे आप तो फिर कैसे मैं हर एक का सर कैसे देख पाऊंगा। आवाज तो सुन सकता हूँ, इसलिए कि कान को देखने की जरूरत नहीं है, सुनने से काम चल जाता है। जरा मोहब्बत से जरा सदा बुलंद हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो आइम्मा, हमारे जो उलमा तशरीफ फरमा है, इनको ज्यादा नेकियों की जरूरत है, चूंकि इनके साथ या अकेले नहीं पूरी पूरी जमात इनके साथ है। तो हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे जन्नत में, आपके जितने मुफ्तदी हैं उनको भी साथ में लेकर के जाइएगा, और उसके लिए असबाब मुहैया करना होंगे। आप भी जरा बोल जाइए सुभान अल्लाह। अब मुझे बोलना पड़ रहा, वो भी अहले इल्म के सामने जिन्होंने किताबों में इबारतुन नस्बी पढ़ी है, इख्तिदाउन नस्बी पढ़ी है, शराहतुन नस्बी पढ़ी है, इशारतुन नस्बी पढ़ी है। अरे मियाँ, इशारे से काम चल जाए तो बड़ा अच्छा है, शराहत तो इनके लिए है, इशारे आपके लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब तवज्जो फरमाइएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए। एक साहब कहने लगे जोग्राफियाई एतबार से हिंदुस्तान में कभी श्रीलंका इंक्लूड था ही नहीं, शामिल था ही नहीं। मैंने कहा मियाँ जबान बंद कीजिए, मैं जोग्राफिये से हदीस का फैसला नहीं करता, हदीस से जोग्राफिये का फैसला करता हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया, बात मुकम्मल हो गई। सरकार इरशाद फरमाते हैं आदम हिंदुस्तान में आए। हमने कहा आप सुनिए, एक नुक्ता दे दूं। हजरत आदम जब हिंदुस्तान में आए थे तो उतरने से पहले रब ने क्या कहा था, कुल्लहबितू मिनहा जमीआ, ए आदम तुम भी उतरो, ए हव्वा तुम भी उतरो। अभी तो हजरत शीश भी तशरीफ फरमा नहीं हुए हैं, हजरत तशहदू भी नहीं आए हैं, हाबील और काबिल का वजूद है। अभी तो दो ही जाते हैं बशक्ल इंसानी, एक हजरत आदम है और एक हजरत हव्वा है। अहले इल्म बैठे हैं, तस्रिया का सीगा होता, इहबिता होना चाहिए था, यानी अक्ल के एतबार से बोल रहा हूँ, चाहिए का मतलब अक्ल ये चाहती है कि इहबिता तस्रिया होता, तुम उतरो और तुम्हारे साथ हव्वा उतर जाए। लेकिन यहाँ सिंगुलर नहीं है, यहाँ 2% के लिए नहीं कहा गया, 2% नहीं है, बल्कि यहाँ कहा जो गया है वो यहाँ पर प्लूरल कहा गया, जमा के एतबार से कहा गया, एक वचन नहीं बहुवचन है। हमने कहा कुरान कहता है तुम सब उतरो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा आई मासुरियतिकुमा, ए आदम तुम भी उतरो, इसलिए कि तुम्हारे साथ तुम्हारी पीठ में कयामत तक आने वाले सारे इंसानों के सारे इंसान भी मौजूद हैं, इसलिए वो सब भी उतर जाए। हमने कहा यार, जब ये सारी कायनात के मर्दों सब हजरत आदम की पुष्प में सवार थे तो उसमें नूरे मुस्तफा भी तो था। ये हमारा मुकद्दर है। आदम जब आए थे दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान में आए और उनके तवस्सुस से नूरे मुस्तफा भी हिंदुस्तान में तशरीफ लेकर। इसलिए उन जालिमों को पता नहीं हिंदुस्तान की अजान कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या बात, बेशक। हिंदुस्तान में पढ़ा जाने वाले कुरान की आवाज कभी खत्म नहीं हो सकती। न जलसे खत्म होंगे, न जुलूस, क्या बात है, न मस्जिदें खत्म होंगी, न अजाने। और याद रखिएगा, यरिसुहा इबादियस सालिहून, कुरान कहता है जमीन के वारिस बड़े नेक बंदे हैं। क्या बात है, वाह। इसीलिए मैंने एक शेर में कहा था बड़े प्यारे अंदाज में, जब हालात थे दिल्ली के दिगरगू, तब मैंने अशार में अर्ज किया था वो बसाएं तुम भगाओ कब है ये मुमकिन भला, वो बसाएं तुम भगाओ कब है ये मुमकिन भला, तुमको शायद पृथ्वी का वाकया मिलता नहीं। हम बसे हैं इस जमीन में और बसेंगे हश्र तक, हम सवारिश इस जमीन का दूसरा मिलता नहीं। क्या बात, क्यों करें हम रुख कहीं का इस वतन को छोड़कर, हुक्म जब ख्वाजा के दर से पूछ का मिलता नहीं। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
غور فرمائیے گا. ابھی سید صاحب قبلہ یہ میں نے اس لیے پڑھ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں اشعار لکھ لیتا ہوں، اشعار تو دنیا لکھ رہی ہے، لیکن میں یہ شعر اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات آمین کہہ دیں اور میری زندگی میں وہ قبول ہو جائے اور میرے لیے ذریعہ نجات بنے. ملے شہزاد کو آقا تیری رویت دم آخر، ملے شہزاد کو آقا، دوسرے کلام کا، ملے شہزاد کو آقا تیری رویت دم آخر، بڑی امید ہے اس کو تیرے تشریف لانے. اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. توجہ ہے آپ کے؟ اب میں عرض کر رہا تھا حضرت آدم جب تشریف لائے نا استوحشا بتقاضۂ بشریت آپ کو اکیلا پن محسوس ہوا، وحشت داری ہوئی. غور فرمائیے گا ذرا میری طرف توجہ کیجیے گا. اصل میں اسی انداز میں گفتگو کرتا ہوں، نہ میرا کوئی انداز ہے نہ میری کوئی بات ہے، بس اسی انداز میں بول دیتا ہوں. اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے، مگر ہاں یہ کہہ سکتا ہوں از دل خیزت بر دل لیزت، بولتا دل سے ہوں، اللہ کرے گا تو دل میں بھی اتر جائے گی میری بات. آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں حضرت آدم علیہ السلام آئے نا استوحشا، آپ کو اکیلا پن محسوس ہوا. اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا. جبریل آئے تو کیا کر رہے ہیں آپ بولیے گا ذرا محبت سے سبحان اللہ. حضرت جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر کے حضرت آدم سے باتیں نہیں کی. الفاظ فنادا بالاذان، آپ نے اذان پڑھی، اذان پڑھی، اذان پڑھی، اذان پڑھی، اذان پڑھی، اذان پڑھی. آپ کے اذان ذرا تھوڑے سے تیز ہو جائے گا تب اذان کی آواز آسانی سے آ جائے گی. توجہ فرمائیے گا. حضرت آدم نے حضرت آدم کے سامنے جبریل امین اذان پڑھ رہے ہیں. عربی کے الفاظ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. عربی کے الفاظ مرتين، یعنی دو بار آپ نے تکبیر کہی، دو بار آپ نے شہادت دی، دو بار سرکار کی رسالت کا تذکرہ کیا. جب آدم علیہ السلام کے کان سے آواز ٹکرائی، بات اس پر چل رہی تھی کہ سرکار آخری نبی ہے. اس عقیدے کے ساتھ جب آپ کی یوپی سے چھیڑ چھاڑ کی گئی تب اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی اور یہ حدیث آپ نے ذکر فرمائی. آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں سرکار کے آخری نبی ہونے کا اعلان کب سے ہو رہا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. حضرت آدم نے پوچھا اے پاک پروردگار من محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن کا اذان میں تذکرہ آیا ہے، جن کا ذکر جبریل کر رہے ہیں؟ تب میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حضرت آدم سے ارشاد فرمایا ھذا آخر خلدک من الانبیاء. اے آدم سنو، یہ تمہاری اولاد میں سب سے آخری نبی بن کر کے تشریف لائے گا. حضرت آدم کا عقیدہ کیا ہے؟ رب نے کیا عقیدہ دیا ہے؟ امام احمد رضا خان نے کتاب کو لکھنے کے بعد عقیدہ دے کے بتا دیا. عقیدہ وہ نہیں ہے جو اور شہروں سے آ رہا ہے، عقیدہ وہی ہے جو امام احمد رضا خان عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سنو، کسی بظاہر عقل والا، بظاہر عقل والا اگر اس عقیدے کو نہ سمجھے تو نہ سمجھے، جانور بھی سمجھتے ہیں. اگر اجازت ہو تو ایک حدیث سنا دوں. کتاب کا نام ہے الادب المفرد اور راوی کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب. سبحان اللہ. وہ عمر جس کی اعدا پہ شڈا سٹا، سبحان اللہ. جہنم ہی ان کی معشوقہ یا عاشقہ ہو سکتی ہے جو حضرت عمر سے نفرت کرتے ہیں، اور جو محبت کرتے ہیں جنت ان کے لیے اپنی پلکیں بچھاتی نظر آتی. سبحان اللہ. بات سمجھ گئے نا؟ ایک قوم ہے رافضی، وہ رافضی قوم مدینہ شریف نہیں جاتی جہاں تک میں جانتا ہوں. کیوں نہیں جاتی ہے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے مصطفیٰ کے دو دربان وہاں تشریف ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بریلی کے امام احمد رضا خان نے کہا نا محبوب رب عرش ہے سبز قبے میں، کیا بات ہے. پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر. سبحان اللہ. جاتے اس لیے نہیں ہے، اور سرکار نے وعدے وصال اپنے قریب دونوں کو جگہ بھی اس لیے دے دی ہے تاکہ ان کی موجودگی یہ بتا دے کہ میری بارگاہ میں وہی آ سکتا ہے جو میرے ان دونوں یاروں سے محبت کرنے والا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مثال کے طور پر ایک مثال دے دوں، سے بطور تمثیل سمجھیے گا. دلی کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، وہ جملے نہیں بولوں گا میں دلی دل والے ہیں. ہم بھی الحمدللہ دل والے ہیں. بغیر دل کے اگر کوئی ہوگا تو مر نہیں جائے گا. دل کی دھڑکنوں سے تو انسان زندہ ہوتا ہے نا.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दिल वाला हर सुन्नी है। बेशक है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा कहना क्या, हम दिल से कब बाहर होते हैं और होते हैं तो किस हालत में, जानो दिल सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। दुआ फरमाइएगा जरा। सैयद साहब टिबला बैठे, हमारे मोहतरम बैठे, मौलाना मुफ्ती मुनज्जम साहब बैठे हुए हैं, 2 हजरात बैठे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी बंदे को अपने घर पे ना बुलाऊं, फंक्शन है, वो आ सकता है बगैर दावत के भी, और वो इन दोनों हजरात से बहुत चिढ़ता है, नाराज रहता है। मैंने क्या कहा, सैयद साहब और मुफ्ती साहब आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर मैंने कुर्सी डाल दी, आप तशरीफ फरमा हो जाए। अब जैसे ही वो आदमी आना चाहता था, जैसे ही चेहरा देखा, चेहरा देख करके फौरन वापस हो गया। यार ऐसे कैसे जाऊं, चला जाता, मगर ये दोनों लोग बैठे हैं, इनसे तो मेरी जमती ही नहीं है। मिला तशरीह और तमसील। हमने कहा जालिम आएगा कैसे, पहले अबू बकर सिद्दीक अकबर को जगह दे दी गई, उसके बाद उमर फारूक आजम को दे दी गई। अब मैं उनके सारे नजरियात से इत्तिफाक नहीं करता, जिनको जमाना पीर नसीरुद्दीन शाह नसीर कहता है, लेकिन शेर बहरहाल उनका अच्छा है। शेर कौन सा है, नाम आते ही अबू बकर उमर का लपर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लपर, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। हमने कहा सुलाया इसलिए है ताकि तू जैसे गद्दार ना आ सके, और सुलाया इसलिए है ताकि हम जैसे वफादार रुक ना सके। तू जाएगा नहीं, हम जाने से बाज आएंगे नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, समझ गए आप? अब हदीस पाक सुनिए। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आराबी आया, हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ फरमाए। वो आए, आने के बाद क्या कहने लगे, हुजूर को चैलेंज किया, बोले ये मैं लाया हूँ। थैला लाए थे, थैले को खोला, उसमें से गोह निकली। गोह जानते हो भैया, ये न्यूला और बिस्कबड़े वगैरह की तरह होता है। सरकार की बारगाह में कहने लगे, अगर ये आप पर कलमा पढ़ ले, आपको रसूल मान ले, तो मैं भी रसूल मान लूं। सरकार अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा लिया। अब जरा गौर फरमाइएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ नजर नबूवत डाली। ये लोग कहते हैं कि जब से हमारे दारुल उलूम से राब्ता हुआ तब से उर्दू आई। मैंने कहा जालिम तेरे मुंह में छाले पड़ जाए, तेरी जबान कट जाए, तुझे मालूम नहीं वअल्लमा आदम अल-अस्मा ऐ माल मुसम्मयात, जो फरमाया गया हजरत आदम को इल्म मिला है, ये भी मुस्तफा का सदका है कि नहीं? यकीनन हमने कहा जब हजरत आदम को अल्लाह ताला मुस्तफा के सदके में सारी जबानों का इल्म दे रहा है, तो क्या मेरे नबी को माज़अल्लाह उर्दू तुम्हारे दारुल उलूम से राब्ता करने के बाद आएगी? अल-हयाज़ु बिल्लाह। हमने कहा सरकार का कमाल दे, हुजूर की बारगाह में अंग्रेजी जाता है, इंग्लिश जबान में दुआ करता है, नबी उसको भी समाज करते हैं, उसको भी सुनते हैं और समझते हैं। और मुल्ला जामी जैसी जात जाती है, अकलूमी रवम बोलती है, फारसी बहरहाल उर्दू जबान से हार्ड है कि नहीं? अगर नहीं है तो बताइए, अगर है हार्ड तो आप उसकी तस्दीक कीजिए, हार्ड है कि नहीं? उर्दू आसानी से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन फारसी को समझने के लिए दुश्वारी होगी। मगर आप देखें तो सही, हजरत मुल्ला जामी जा रहे हैं, कहते अकलूमी रवम या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं जाना चाहता हूँ, कब्र से आवाज आती है, बिरू आवाज आई, जा तो रहे हो लेकिन फिर पलट के मेरी बारगाह में आ जाना। हमने कहा जब उर्दू से ज्यादा हार्ड मुस्तफा करीम फारसी समझ रहे हैं, फारसी में जवाब भी दे रहे हैं, तो उर्दू किस जबान का नाम है? उर्दू किस तरीके से मेरे नबी नहीं जानते होंगे? अल-हयाज़ु बिल्लाह। हाँ तो सरकार का कमाल देखो, मेरे नबी की निगाहे नबुव्वत पड़ी, वो जानवर है जानवर। सरकार ने फरमाया अरबी में, या गप्पो ऐ गो, सरकार का ये जुमला अरबी में था, नबी की निगाहे नबुव्वत पड़ी, अल्लाह ने उस जानवर को भी ज़बान अता फरमा दी। अरबी में कहती है लब्बैका व सादिका या सय्यदन वफ़ यौमल क़ियामा, कहती है क़यामत की सरपोशीना, क़यामत के दूल्हा, बताए तो सही मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। हमने कहा निगाहे नबुव्वत का कमाल है, अगर जानवर पे पड़ जाए तो उसको आसान नहीं, दुनिया की सबसे हार्ड जबान बोलने की ताकत पैदा कर दी जाती है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, मेरे नबी फरमाते हैं ये बता मन ताबूत, तेरा माबूद कौन है, तू किसकी इबादत करती है? अभी चल रहा हूँ यरफून तहरीफल कालीन पर ही गुफ्तगू कर रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब उससे पूछा बता तेरा माबूद कौन है, किसकी इबादत करती है? अहले इल्म बैठे हैं, इनमें बहुत सारे हजरात
अपने मदरसों के शयूखुल अदब भी होंगे, अरबी अदब पढ़ाने वाले होंगे, इनसे पूछिए अरबी अदब अगर पढ़ता है बंदा कितने दिनों के बाद उसको मुसज्जा मुकफ़्फ़ा मकामाते हरीरी जैसी इबारतें लिखने का सलीका पैदा होता है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, छोड़ा मोड़ा। मगर यहाँ देखिए सरकार ने निगाह नबुव्वत डाली जानवर पर। मदरसे के शेखुल अदब भी ऐसा अदबी जुमला न बोल सके दूसरे बोल दे। क्या बात है, वाह वाह। कहने लगी अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु, कहती है वफिल अर्दी सुल्तानो वफिल बहरी सबीलो वफिल जन्नती सवाबो वफिल नारी इकाबो। कहती है मेरे आका मैं उस जात की इबादत करती हूँ आसमान में जिसका अर्श है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह। जमीन में जिसकी बादशाहत है, समंदर में जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका अजाब है। अब कितनी मुसज्जा मुकफ़्फ़ा इबारत ये आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इल्म वाले इसका लुत्फ ले रहे होंगे और इनको इसकी लिज़्ज़त पूरी तरीके से महसूस हो रही होगी। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती है पाक परवरदिगार के प्यारे हबीब, मैं उस जात की इबादत करती हूँ जिसका आसमान में अर्श है, जमीन में जिसकी हुकूमत है, समंदर में जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका अजाब है। लेकिन चैलेंज अल्लाह की वहदानियत पर नहीं था, अल्लाह के एक मानने पर नहीं था, चैलेंज इस बात पर था ये आपको अगर रसूल मान ले तो मैं भी रसूल मान लूंगा, मैं भी रसूल मान लूंगा। सरकार ने फिर अपने बारे में पूछा, पहला सवाल का जवाब हो गया, सारे सहाबा सुन रहे हैं। उमर फारूक आलम ने सुना ना, जभी तो रिवायत किया है, वरना रिवायत कैसे करते। तवज्जो है ना आपकी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मौलाना अब ये बता दे मैं कौन हूँ। कहने लगी अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन कद अफलह मन सद्दक़ व कद खाब मन कज़्ज़ब। चार जुमले बोले, आप तर्जुमा करने से पहले सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से बोलिए। सरकार की बारगाह में अर्ज करती है, ए मेरे आका आप तो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी बना करके भेजे गए हैं। कद अफलह मन सद्दक़, कामयाब वही होगा जो आपके दामने करम से जुड़ गया है। इमाम अहमद रज़ा खान कहने लगे, उन्हें जाना उन्हें माना, लड़का गैर से काम लिल्लाहिल हम्द व दुनिया से मुसलमान गया वक़द खाब मन कज़्ज़ब। और मेरे आका जो आपके दामन से अलग हो गया वो नाकाम और नामुराद हो गया। तब आला हजरत कहने लगे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, नारे अहले सुन्नत। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमा रहे हैं आला हजरत ने उस अकीदे की हिफाजत। आज के दौर में कोई इतना बड़ा मुहाफिज़े नामूसे रिसालत नहीं जितना बड़ा मेरा इमाम अहमद रज़ा खान। बेशक हक है, बेशक हक है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मोहतरम, कुछ भी फैसला करने से पहले आला हजरत को पढ़ लिया जाए। माफ कीजिएगा, मेंबरों से मेहराब से एक जुमला बोला जाता है, निकलिए निकलिए निकलिए। मैंने कहा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो फैसला है पहले उसको पढ़ लीजिए। हुसामुल हरमैन में जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक बुजुर्ग के तस्दीक के नीचे जो हाशिया लिखा है उस हाशिये को पढ़ लें। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन जो भी करना है अपने उलमा की और उलमा से पूछिए कि आला हजरत का मसलक के सिलसिले में क्या कह रहा है, ताकि कहीं ऐसा ना हो हमारा कोई कदम मसलक के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ चला जाए। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम जो भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस्लाम की रोशनी में किया करते हैं। इमाम अहमद रजा खान ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात आई, अक़ीदा इस्लाम की हिफाजत की बात आई, तो देखो इमाम अहमद रजा खान ने किस तरीके से हिफाजत की है। और फरमाइएगा आला हजरत के दौर में एक बात और उठी थी, वो ये था कि मेरे नबी कब्र में जिंदा रही, इसीलिए तो बल अक़ीदा ने कहा सरकार से निदा करता क्यों है, इस्तिग़ासा करता क्यों है। अगरचे आला हजरत ने भी किताबें लिखी, आला हजरत के दौर में ही आपके दोस्त है वो भी मुजद्दिद है हजरत अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपने पूरी किताब लिखी है शवाहिदुल हक फिल इस्तिग़ासती में सय्यदुल खल्क़, उसमें आपने एक रिवायत लिखी सरकार की हयात तैयबा पर, मेरे नबी जिंदा है, इस पर आपने बड़ी पाकीज़ा रिवायत जिक्र फरमाई है। तवज्जो फरमाइएगा, पहले मैं आपको
बताता हूँ, कुरान के सूरह मोहम्मद की सबसे सूरह फतह की सबसे आखिरी आयत करीमा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये दिल्ली है, दिल्ली, यहाँ आप अच्छी तरह जानते हैं इंग्लिश यहाँ के लोगों की मजबूत होती है, ग्रामर्स भी आपके जहन में पूरी तरीके से बैठे हुए हैं। आप जानते हैं एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है। प्रेजेंट यानी मौजूदा जमाने को कहा जाता है। कुरान की आयत करीमा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मिसाल के तौर पर हमारे कारी साहब बैठे हैं, कारी क्या नाम है कारी साहब आपका? कारी इलियास साहब, तवज्जो फरमाइएगा। कारी इलियास साहब बैठे हुए हैं। कारी इलियास साहब ने मुझसे कहा आइए हजरत फला आदमी से मुझे मुलाकात करना है दिल्ली में, आपको मालूम है उसका एड्रेस। मैंने कहा चलिए। हम जैसे ही उसके घर के दरवाजे पर गए, 2-4 लोग बैठे थे। हमने कहा डॉक्टर साहब का यही घर है। डॉक्टर साहब कहाँ है? कहाँ है ये मत पूछिए, अब ये कहिए कहाँ थे। हमने कहा वजह क्या है? कहा डॉक्टर साहब का कल इंतकाल हो गया, यानी कल तक थे, कल तक है, और आज क्या है इंतकाल हो गया तो थे। मैंने कहा यार इतना तो गौर कर ले, नबी को मुर्दा कहने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान की आयत प्रेजेंट टेंस को बता रही है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे भी, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है भी, मोहम्मद अल्लाह के रसूल रहेंगे भी। अगर माज़ अल्लाह नबी को मुर्दा मान लिया तो फिर आका करीम अलैहिस्सलाम के जो औसाफ है, इसलिए कि डॉक्टर साथ नहीं होती, डॉक्टर वस्फ होता है, आलिम होना वस्फ होता है, ये खूबी होती है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़अल्लाह अगर मुर्दा मानते हो तो फिर तुम्हारे एतबार से तर्जमा कुछ और होगा, लेकिन हमारा नबी कल भी जिंदा था। और इस हयात को जश्न गौसुल बरा के हवाले से अर्ज करता हूँ, ये अकीदा मेरा ही नहीं, ये अकीदा इमाम अहमद रजा खान ही का नहीं, ये अकीदा तो हम सुन्नियों के गौसे आजम का भी है। यही वजह है कि आला हजरत ने अपनी किताब तर्जुल अफ़ाई अन हिमायतिन नफ़ार रिफ़ाई के अंदर इन अशार को तहरीर फरमाया। गौसे आजम मेरे नबी की बारगाह में गए। पहली बार जब हज किया था ना तो 38 साल की उम्र में किया था। उसके बाद जब आप गए सरकार की बारगाह में अर्ज किया फी हालतिल बौदी रूही कुंतु उर्सुलहा तो कब्बिलुल अर्द अन्नी वही अलाइबती वहाज़िही नौबतुल अशबाई कद हज़रत फमदुद यमीनका कई तहज़ा बिहा शफती। कहने लगे आका अब्दुल कादिर जब बगदाद और जीलान में रहता था, आपकी याद आती थी ना तो अपनी रूह को आपकी चौखट को चूमने के लिए भेज देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा हो ना भाई? जी जी अरे जिंदा हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बोल तो जाओ भले आदमी, वरना डाउट होगा। सुभान अल्लाह। हाँ, फिर मुझे भी ऐसे मुर्दे नजर आएंगे जो आंख खोल के बैठे भी रहते हैं मुर्दे भी। तो ये तारीख रकम मत कीजिए, जो निजाम कायनात बना हुआ है उसमें तक बीच वाला मत लाइए। मंजिलतुम बैना मंजिलतैन, 2 ही दर्जे रहने दीजिए। मोहब्बत से बोलिए भाई सुभान अल्लाह। अब अगर सुन्नियों को नेकियों के लिए बार बार कहना पड़ेगा तो फिर कौन सी बात है? सुभान अल्लाह, सुभान हमने तो अल्लाह। कह दिया ना वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। तो मैं 10 बार नहीं 100 बार कहलवाऊं। हो सकता है मेरी बिरादरी का कोई बंदा कहे सुभान अल्लाह बहुत कहलवा रहा था। मैंने कहा अगर कहलवा रहा हूँ तो जुर्म नहीं कर रहा हूँ, अच्छा ही काम। एक बार नहीं 100 बार भी कहलवा लूं, 100 बार नहीं 1000 बार भी कहलवा लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर तो हो गई। सुभान अल्लाह। जी जी मैं भी उसी अंदाज में बोलूंगा। काहे इतनी मेहनत करनी? सीना हम लोगों का लोहे का थोड़ी है ना, पत्थर का है, जी जी गोश्त का है। ये जुमला हमारे भाई को बहुत अच्छी तरह समझ में आया। दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने का। कहाँ देख रहा? क्या बात है? हाँ, ये बात तो सही है। कागजात घर के तो नहीं लाए बेटा? घर के कागजातों को हमें दे देना, दिल्ली में हमारा घर है। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह सलामत रखे। आमीन। वापस से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सैयदी गौसे पाक थोड़ी आवाज बढ़ा दो, हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी सी बच जाए इसके सदके में। गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदी गौसे पाक ने कहा फी हालतिल बुदी रूही कुंतु उर्सिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वही अलाइबती। हुजूर जब मुझे याद आती थी ना, अब्दुल कादिर जीलान में होता है, बगदाद में होता है, आपसे दूर होता था। फी हालतिल बुअद, जब आपसे दूर होता था आपकी याद आती थी ना, अपनी रूह को आपकी बारगाह में भेज दिया करता था। वो आने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह को आपकी चौखट, इधर देखिए आपकी चौखट
सुभान अल्लाह वही नाइबती, मेरी तरफ से मेरी नाइब बन गया। लेकिन अब क्या है, वहाज़िही नौबतुल अशबाह कद हदरत। हुजूर आज तो अब्दुल कादिर रूह के साथ जिस्म भी लाया है। सुभान अल्लाह क्या बात है। सुभान अल्लाह। रूह और जिस्म दोनों है, सोल और बॉडी दोनों है, आत्मा और शरीर दोनों है। क्या चाहते हो? बहजतुल असरार शरीफ के हवाले से मेरे इमाम ने लिखा है, नाम उर्दू में फजीलत गौसे आदम। कहा हुजूर फमदुद यमीनक। मौलाना संभली मालूम होता, संभल क्या है? देखिए चेहरे की कैफियत बता रही है कि संभल है। संभल में इतने दौरे हो गए पिछली साल कि अब संभली चेहरे भी समझ में आने लगे। हालांकि मैं नहीं जानता था आपको संभल क्यों, आदत से मुलाकात तायबा हो गई। मौलाना संभली साहब हाथ लाइए। मौलाना हुसैन संभली भी थे ना यार, मौलाना अजमल उलमा संभली भी थे ना। क्या जाते हैं, अल्लाह ताला फजल फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। अब हाथ लाइए। मौलाना क्या नाम है आपका? मौलाना मोहम्मद नाजिम संभली साहब। इन्होंने देर नहीं करी, मैंने कहा हाथ लाइए, इन्होंने फौरन बढ़ा दिया। इनको मालूम है अगर नहीं बढ़ाऊंगा तो दो ही चीजें मेरे ख्याल में आ सकती है, या तो नींद में होना या फिर लंबी वाली नींद में होना। हाथ बढ़ा दिया और मैंने भी कहा इस ख्याल से कि मैं किसी मुर्दे से नहीं कह रहा हूँ, जिंदे से कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अगर समझ गए हो तो भाई ठीक है ना, मिसाल समझ में आई। सरकार ने इस सलाम की बारगाह में सैयदी गौसे पाक ने कहा फमदुद यमीनक, हुजूर अपना दस्ते पाक बढ़ाइए। हमने कहा दस्ते पाक बढ़ाने के लिए अब्दुल कादिर जीलानी इसी नजरिए से कह रहे हैं। उनको मालूम था सरकार कब्र में जिंदा है और जिंदों से कहा जाता है, मुर्दे से नहीं कहा जाता। ये सरकार की करम नवाजी है। जो जो नबी को जिंदा मान लेता है इंशाअल्लाह रहमान कब्र में जाके उसको इस अकीदे का असर मिलेगा। इसीलिए तो आला हजरत अपनी किताब फतावा करामाते गौसिया में एक हदीस बड़े प्यारे अंदाज में तारीफ फरमाते हैं। मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया नशमतुल मोमिन ताइरुन यालकु फी सदरिल जन्नह हत्ता युरशिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबासु। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ईमान वाले का इंतकाल होता है, लेकिन होना चाहिए ईमान वाला, ये नहीं कि पर अकीदा के साथ भी हाथ मिला ले, ईमान पे असर ना पड़े, राफसी के साथ भी खा ले, ईमान पे असर ना पड़े। मैंने कहा ना भाई, आपने पढ़ा है ना आला हजरत को, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा, गैर से कहा। ये गैर वही है जो मुस्तफा के नहीं है, जो सुन्नी है वो गैर नहीं है, और जो मुस्तफा के नहीं है वो गैर है। उन गैरों से बचना होगा। अगर ये अकीदा लेकर गए, पहले तो ये कहा इश्क तेरे सकते जलने से छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। लेकिन उससे पहले कहा जान है इश्क मुस्तफा, रोज खुजू करे खुदा। हमने कहा कहां तक इश्क करे, तो आला हजरत कहने लगे अल्लाह तुम्हें इश्क रुखे से दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चरा लेके चले। हमने कहा इसका फायदा क्या मिला? कब्र तक इश्क रसूल लेकर के गए, फायदा क्या मिला? तो जवाब मिलेगा फायदा मैं उसको समझा रहा हूँ। किसी भाई सुन्नी का इंतकाल हुआ, 2 साल के बाद कब्र पे जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह कब्र पर जो उसके इत्मीनान मिलेगा और ज़बाने हाल से कब्र कह रही होगी खाक होकर इस समय आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। ऐसा सुन्नी जब मरता है, सरकार फरमाते हैं ईमान वाले की रूह को अल्लाह परिंदे की शक्ल दे देता है। वो परिंदा दुनिया के दरख्तों में नहीं, या लगो फी सदरिल जन्नह, वो जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। ए मेरे आका कब तक रहेगा? फरमाया जब तक कयामत आएगी नहीं, सच्चे ईमान वाले की रूह जन्नत से जाएगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने अर्ज किया हुजूर अपना दस्ते मुबारक बढ़ाइए। क्यों? कई तहज़ा बिहा शफ़क़त। सुभान अल्लाह। हुजूर मैं आपके दस्ते पाक को चूमना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ गए आप? अब यहाँ हाथ ही नहीं है तो चूमोगे क्या? अब एक आदमी यूं ही चूमने लगे तो जमाना कहेगा पागल है, यही तो बोलेगा कि उसने का हाथ है ही नहीं। लेकिन आप जानते हैं सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा था कि हुजूर जिंदा है और हाथ भी जिंदा ही का तो होता है। बेशक। आप कहेंगे मौलाना मुर्दे का भी हाथ होता, हमारे यहाँ तो फला आदमी मारा था उसका हाथ भी था।
میں نے کہا ہاتھ وہ جو حرکت کرنے والا ہے، کیا بات ہے، مردے کا ہاتھ حرکت نہیں کرتا ہے، زندے کا ہاتھ حرکت کرتا ہے۔ ملا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا فخرجت الیہ الیۃ الشریفۃ فقبلها ووضعها علی راسہ۔ سرکار علیہ السلام کا دست پاک نکلا بھی، غوث اعظم نے اس کو چوما بھی اور اپنے سر پہ رکھوا بھی۔ سبحان اللہ، تب بریلی کے امام کہنے لگے تو زندہ ہے اللہ۔ لا رہے ہیں، راستہ بنا دیں، راستہ بنا دیں اور کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ آواز بڑھا، چھوٹے مائک کی آواز بڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، چشم و چراغ خاندان اعلیٰ حضرت، حضور صاحب سجادہ۔ حضرت کو آنے دیں، آنے دیں، آنے دیں۔ اس وقت مصابہ نہ کریں، گیلری بنا لیں دونوں سائڈوں میں، بالکل گھیرے میں لے لیں، ہاتھوں کے گھیرے میں۔ نعرہ تکبیر، موبائل جیب میں رکھے، موبائل جیب میں رکھے، موبائل جیب میں، کوئی سا فوٹو نہ کھینچے، ویڈیو نہ بنائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ مفتی احسن میاں صاحب قبلہ، چشم و چراغ خاندان اعلیٰ حضرت، رضوی دولہ، رضوی دولہ، شہزادے حضور سبحانی میاں، شہزادے حضور سبحانی میاں، حضرت علامہ مفتی احسن میاں صاحب قبلہ، حضور بدر الشریعہ علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، تحریک تحفظ و سنیت بریلی شریف، علماء اہل سنت حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور ماشاءاللہ ساتھ میں اورنگزیب بھائی، شاہد بھائی اور دیگر ہمارے تحریک تحفظ و سنیت کے کارکنان ہیں، آپ شہباب صاحب، تمام حضرات آپ بیٹھے تشریف رکھیں۔ حضرت کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، موبائل اندر جیب میں رکھیے، موبائل جیب میں رکھیے، اس کا خیال رکھیے۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ بہت اچھی تقریر مفتی شہزاد صاحب قبلہ کی ہو رہی ہے، بالکل آخری اس میں ہے، کتاب ہوگا۔ آپ حضرت کرسی پہ تشریف رکھیں گے، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھے بیٹھیں بھائی، موبائل اندر رکھیے، موبائل اندر رکھیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ ہمارے اسٹیج کے علماء بھی تشریف رکھیں، اسٹیج والے ہمارے بھائی علماء کرام، بس تک گزارش ہے، بعد میں آپ مصافحہ کریں گے۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ جس ذات کا آپ کو انتظار تھا وہ ذات بابرکات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ دیدار بھی کریں گے، اور جو اب تک کسی جامع شرائط پیر سے مرید نہیں ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ دست حق پرست پر مرید بھی ہو جائیں گے۔ اتنا یاد رکھیے گا، میں بس آخری گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ 12:30 مجھے ٹائم دیا تھا، 1-2 منٹ اوپر ہو۔ حضرت تشریف فرمائے، چلتے چلتے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ بریلی سے پہلے بھی محبت کرتے تھے، آج بھی محبت کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے جائیں گے۔ یہ دعویٰ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں بریلی سے تعلق رکھتا ہوں، یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہندوستان کے حالات دیکھ کر، ان کے تجربات کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کے دور میں اگر کوئی خانقاہ مذہب و مسلک اور دین و سنیت کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے، اور جہاں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہے، وہ اگر ہے تو الحمدللہ رب العالمین خانقاہ بریلی شریف۔ بے شک بے شک، آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر وہاں سے جڑے ہوئے علماء بھی، وہاں سے جڑی ہوئی عوام بھی مذہب و مسلک کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتی، ورنہ آپ دیکھیں کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، بریلی شریف کی مرکزیت کو کسی عام انسان نے، کسی دنیا دار نے نہیں بنایا ہے، بریلی کی مرکزیت مدینے کے تاجدار کی عطا پر ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہی بریلی شریف ہے، سرکار کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے، آپ فرماتی ہیں اذا مات النجاشی۔ ذرا اہل علم توجہ فرمائے، موبائل تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیجیے بھائی، 2-4 باتیں میں قیمتی بول دیتا ہوں، اگرچہ لا علم ہوں، کم علم ہوں، آپ سے زیادہ علم والا نہیں ہو، لیکن کبھی کبھی چھوٹوں کی باتیں بھی دھیان سے سن لی جاتی ہے۔ حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں، بریلی کی مرکزیت کو سمجھیے گا۔ سرکار علیہ السلام کی بیوی، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ، جن کے لیے سرکار نے فرمایا عائشہ تو زوجی فی الجنہ، جس
जिस तरह आयशा दुनिया में मेरी बीवी है, इसी तरह आखिरत में भी मेरी बीवी होगी, जन्नत में भी मेरी बीवी होगी। यही हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, इज़ा मातन नज्जाशी कुन्ना नतहद्दसु अन्नहु युरा अला कब्रिही नूर। फरमाया सुनो सुनो, हजरत नज्जाशी का, हबशा के बादशाह का जब इंतकाल हो गया, वो ईमान लेकर के आ गए थे, सरकार की ज़ाहिरी जिंदगी में उनका इंतकाल हो गया था। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, उनकी कब्र का कमाल ये था, जो उनकी कब्र पे जाता था उसे नूर नजर आता था, रोशनी नजर आती थी। एक नज्जाशी की कब्र पर रोशनी नजर आ रही है, और एक रोशनी बरेली के इमाम अहमद रजा खान के वालिद बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खां को देखो, आला हजरत के हाथ से लिखी हुई आला हजरत के वालिद की ज़बानें सुना रहा हूँ। मैं हवाला भी उसका दे रहा हूँ जिसका हवाला मिलने के बाद फिर हमें किसी हवाले की जरूरत नहीं रहा करती है। इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, मेरे वालिद ने फज्र की नमाज पढ़ी, हुनूस वक्त ज़ोहर बाकी था। आला हजरत कहते हैं वालिद पर गशी तारी हो जाती है। उस गशी के आलम में आला हजरत के वालिद बुजुर्गवार ने अपने हाथों का वुजू भी कर लिया, और उसी हालत में आपने नमाज जैसी कैफियत भी तारी कर ली। इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, अब आखिरी सांसें चलने लगी, जैसे ही आपकी रूह मुकद्दस कफ़से उनसरी से परवाज कर रही थी। आलम क्या था? आला हजरत कहते हैं, मैंने देखा उनके सीने से नूर निकला और उनके चेहरे पर इस तरह पड़ा कि जैसे पानी या आईने के अंदर सूरज की चमक और दमक हुआ करती थी। हमने कहा एक नज्जाशी की कब्र पे नूर नजर आ रहा है, और एक बरेली में इमाम अहमद रजा खान के वालिद की चेहरे पर नूर नजर आ रहा है। मोहब्बत से बोले तो सही यार, सुभान अल्लाह। ऐसे हम मरकज से प्यार करने वाले हैं। मैंने आला हजरत जो मरकजी शख्सियत है उसके वालिद का पता दे दिया। तवज्जो फरमाइएगा, अब अगला जुमला सुने। 3 दिन हो गए इंतकाल को, आला हजरत के वालिद को सिटी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मुजाहिदे आजादी कुतुबुल वक्त अल्लामा रजा अली खां। अरे मियाँ, इसी से हजरत की जात को समझिए, किस खानदान से ताल्लुक है। मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, मगर ये अगर कहा जाए कि इमाम अहमद रजा खान को मिला है तो फला से जुड़ने के बाद बाकी कुछ नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं नहीं, आला हजरत को बारगाह बुजुर्गा से मिला बहुत कुछ है, लेकिन आला हजरत का खानदान भी कोई खाली नहीं है। मौलाना आजम खान अलैहि रहमा खुद वली कामिल है, अल्लामा रजा अली खां खुद वली कामिल है। इसी तरीके से आप नीचे चले जाएंगे, वलियों की पूरी जमात आपको मिलेगी। 3 दिन के बाद आला हजरत ने ख्वाब में देखा कि आला हजरत के पीरो मुर्शिद अल्लामा नकी अली खां के पीरो मुर्शिद, यानी वालिद और बेटे दोनों के पीरो मुर्शिद सरकार शान रसूल महर रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप वहां तशरीफ फरमा है सिटी कब्रिस्तान में। आला हजरत कहते हैं, मैंने पूछा मुर्शिद गिरामी वकार, आपका मस्कन तो महरेरा मुकद्दसा है, आप यहाँ कैसे? फरमाया बेटा, आज के बाद हम यही रहा करेंगे, इसलिए बरेली की मरकजियत को कोई मैली आंख से न देखे। चूंकि वजह यह है कि बरेली की मरकजियत को संभाला है महरेरा मुकद्दसा के बुजुर्गों ने, बरेली की मरकजियत को संभाला है बिलगिराम के बुजुर्गों ने, बरेली की मरकजियत को संभाला है कालपी के बुजुर्गों ने। जब इतने बुजुर्गों का साया हो तो बरेली कल भी मरकज था, आज भी मरकज है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक मरकज रहेगा। इसीलिए हमने कहा, ए बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी जलवा गए आला हजरत है तू, फिर यकीन मरकज है अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकजियत सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बहुत ही जाबख्श नवाज पुरसोज ईमान अफरोज खुदावा भी आपने समात किया। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा लाइक एहतराम मखदूम इब्न मखदूम पीर इब्न पीर नबील आला हजरत शहजादे आला हजरत पीर तरीक़त रहबरी राह शरीयत क़ाते नज़दियत मक़सद खैर व बरकत हुज़ूर बदरुल शरिया हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा हसन मियां साहिब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत व कौमी सदर आलमी तंजीम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत बरेली शरीफ तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद रज़ा साहब क़िबला ने अल्हम्दुलिल्लाह बीच बीच में भी बताया और आखिर में कमाल कर दिया। सुभान अल्लाह, तफसीर की ज़रूरत नहीं है।